students, how are you? I hope you will be fine at home and you are studying in the proper way. Once again, welcome in history class. Today we will start the new chapter, chapter 3rd, Nazism and the rise of Hitler. Firstly, we will see what do we mean by the Nazism according to that chapter and rise of Hitler. But before understand these two words, firstly we will discuss the three topics according to that book. World War First, what were the facts of the World War First, and the Treaty of Versailles and the birth of Weimar Republic. Okay, so first we will see World War First and why that first World War started by the between two powers, Central Powers and the Allied Powers. Because that time every country they were having the one is what we can use here, imperialism. Imperialism मतलब होड़ लगना एक दूसरे की, यानी कि दे वांट टू ऑक्युपाई अदर कंट्रीज फॉर द रिसोर्सेज, यानी कि उनको एक दूसरे उपनिवेशों की होड़ लग चुकी थी, कैसे हम एक कंट्री के रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में ले। तो इसलिए ये टू पावर्स के बीच में लड़ा गया, वन पावर सेंट्रल पावर, सेकंड अलाइज पावर्स. And central powers, who were in the central powers? Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and the Ottoman Empire. And who were in the second allied power? Britain, France, Russia and USA. Or that war fought between in 1914 to 1918. And in the starting, what were they thinking? All the powers expected short-term war to gain through quick victory. कि छोटे समय के लिए वॉर लड़ा जा रहा है, छोटे समय में मतलब हमें जल्दी ही विजय हासिल हो जाएगी इससे. Or that time we know very well Germany was a powerful empire in early 20th century. यानी कि in the early 20th century Germany was a powerful empire. Germany made initial gain occupying France and Germany. In the starting, who were the more powerful? Central powers. In the starting, Germany occupied the France and the Belgium. And when the allies, यानी कि when the allies power became the strengthened, यानी कि मजबूत कब बनी? When USA joined the First World War in 1917. यानी कि in which year USA joined the First World War in 1917. And after that what happened? Allies won the battle, यानी कि won the war. And who defeated the war? Central powers defeated the wars. So we see here कि First World War fought between two powers, Central powers and the Allies power. But war drained almost all resources of Europe. पर इससे क्या लॉस हुआ? यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे उन सबके रिसोर्सेज इसके अंदर यूज हो गए. नाउ व्हाट दे वर थिंकिंग, स्पेशली अलाइज पावर, कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज यूज हुए हैं उनको कौन हमें प्रोवाइड करवाएगा दोबारा से, हम कैसे उनको हासिल करेंगे. तो व्हाट दे हैव डन, ऑल द अलाइज पावर्स, दे हैव व्हाट दे वर थिंकिंग कि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस हुआ है वो किसकी वजह से, वो हमें जर्मनी, यानी कि जो भी उनका था कंपनसेशन, हु विल फुलफिल ऑल द कंपनसेशन, ऑल द कंपनसेशन फुलफिल बाय द जर्मनी. यानी कि अभी जो हमें क्षतिपूर्ति हुई है, जो कंपनसेशन के रूप में जो भी रुपीज देने हैं या जो भी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करवाने हैं, अब हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा? जर्मनी. द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड abdications of the emperor gave an opportunities to parliamentary parties to recast German polity. यानी कि after the First World War, what happened? Germany defeated the war. Or that time who was the emperor? Kaiser William II. He also gave up. उसने भी अपनी राजगद्दी छोड़ दी. Opportunities to parliamentary parties, यानी कि अब इन्होंने किस तरीके की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की यहाँ पर? रिपब्लिक, जो किसके द्वारा चूज की जाएगी? चूजन बाय द पीपल, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मैन एंड वीमेन बोथ वर इंक्लूडेड, एंड रिकास्ट जर्मन. और फॉर दैट पर्पस, यानी कि हु विल कंपनसेशन ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि अलाइज ने सोचा कि हम एक ऐसी ट्रीटी बनाएं जिस ट्रीटी को नाम उन्होंने दिया ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस. ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या होगा? जो भी इनको क्षतिपूर्ति हुई, जो भी कंपनसेशन के रूप में जर्मनी ने पूरा इनको देना पड़ा. अब वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या थी और क्या जर्मनी को इन अलाइज पावर को देना पड़ा इसमें. अब नाउ वी विल सी बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, यानी कि हाउ द वीमर रिपब्लिक ओरिजिन. ए नेशनल असेंबली met at Weimar that is a place name, and established a democratic constitution, यानी कि a national assembly met which place they met at a Weimar and established a democratic constitution, यानी कि they want to establish a democratic constitution with a federal structures, and deputies were now elected to, now यानी कि deputies यानी कि जो उनमें काम करने वाले लोग थे
अब वो किसके द्वारा चूज किए गए? जर्मन पार्लियामेंट। और व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट? रेक्सटैग। व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट? रेक्सटैग। ऑन द बेसिस ऑफ, और हाउ दैट पार्लियामेंट चूजन? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स बाय अडल्ट्स। अडल्ट्स का मतलब इंक्लूडिंग वीमेन्स ऑल्सो। बट द रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक मतलब द Weimar Republic was not welcomed, या we can say that not received by all the people. Why? What they were thinking? They were thinking कि then who is the responsible? Weimar Republic. अगर Weimar Republic अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो जर्मनी हो सकता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाता, पर उससे पहले ही वीमर रिपब्लिक ने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग जो भी क्षतिपूर्ति हुई है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी हानि हुई हम उसको क्षतिपूर्ति करेंगे। तो इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया कि हो सकता था कि जर्मनी जीत सकता था। और सेकंड, इन्होंने क्यों नहीं वेलकम किया? डिसग्रेस एट वर्सेलिस, यानी कि जो उनके साथ जो संधि हुई ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की, वो जर्मनी के लिए सही नहीं थी। तो इसलिए दैट्स व्हाई मैनी पीपल डिडंट वेलकम द बर्थ ऑफ वेहिमर रिपब्लिक। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से सेंट्रल पावर, यानी कि वी कैन से दैट जर्मनी को क्या क्या लॉस हुआ, क्या क्या इनको कंपनसेशन के रूप में अलाइज पावर को देना पड़ा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट ट्रीटी वाज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मन। व्हाई? बिकॉज व्हाट दे वर थिंकिंग कि जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड, यानी कि जो भी उनका लॉस हुआ है, अलाइड पावर का सफर हुआ है, वॉर में जो भी डैमेज हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल माना गया? जर्मन। तो दैट्स व्हाई ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को क्या बोला गया? हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मन्स, यानी कि पूरा किसको गिल्टी बना दिया इस पूरे वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी को। एंड सेकंड, व्हाट वाज द लॉस? जर्मनी लॉस इट्स कॉलोनीज, यानी कि लॉस इट्स कॉलोनीज का मतलब जो इंपीरियलिज्म के समय जब एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को ऑक्युपाई कर रही थी, उस समय में उसने जो कॉलोनीज ऑक्युपाई की थी, दैट वाज आल्सो लॉस्ट। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और उससे उसको कितना लॉस हुआ कॉलोनीज जाने से दूसरे उसमें एरिया में? 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड साइमल्टेनियसली 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, यानी कि उसको जो कॉलोनीज लॉस्ट करनी पड़ी उससे उनकी कितनी पॉपुलेशन दूसरे एरिया में जाकर इंक्लूड हो गई? 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और कितने परसेंट उसकी टेरिटरीज इंक्लूड हो गई इसके अंदर? 13%, यानी कि एरिया। 75% ऑफ आयरन, जो उसकी कंट्री का जो रिसोर्सेज था 100% जो आयरन था, 75% आयरन देना पड़ा, और उसमें से कोल कितना देना पड़ा? 26%। किसको देना पड़ा? कौन सी अलाइड पावर को? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया, यानी कि 4 को मेनली देना पड़ा, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया। The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. अब अलाइड पावर ने और क्या किया? demilitarize मतलब जो उनकी आर्मी थी उस पावर को भी उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया ताकि वो फ्यूचर में दोबारा से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया? उनकी आर्मी को वीक करना शुरू कर दिया, demilitarize जर्मनी। और जर्मनी को गिल्टी माना गया था इस वॉर के लिए, और जर्मनी के ऊपर क्या एक और लाभ दिया गया? जर्मनी वॉज फोर्स टू पे पाउंड 6 बिलियन, और कितना पे? कंपनसेशन के रूप में, एज वॉर कंपनसेशन, यानी कि वॉर को कंपनसेशन के रूप में जर्मनी को कितना पाउंड पे करना पड़ेगा? 6 बिलियन, जो अलाइड पावर को। अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्युपाइड, जो अलाइड्स की जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया? ऑल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड, और जो राइनलैंड किसके लिए फेमस था? मेनली कोल एंड आयरन के लिए, जो इनका इंपॉर्टेंट एरिया था रिसोर्सेज के लिए, that was also occupied by the Allied army. So it means these are the losses suffered by the Germany after the First World War. So that's why Treaty of Versailles was very harsh and humiliating for the German. Now Weimar Republic was held responsible, और Treaty of Versailles के लिए किसको responsible माना गया है? Weimar Republic was held responsible for acceptance of this treaty, क्योंकि इस treaty को किसने accept किया था? वीमर रिपब्लिक ने। नहीं तो वहां के कुछ लोग तो क्या कह रहे थे, अगर वीमर रिपब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता तो हो सकता था कि जर्मनी वो जीत भी जाता। तो यानी कि पूरा कुल मिला के ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को हमने किसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया? वीमर रिपब्लिक। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, यानी कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अफेक्ट्स द एंटायर कॉन्टिनेंट। We know very well the First World War
fought between two powers, Axis and Allies and the Central Powers. So it means the war had a devastating impact on the entire continent, not only Germany, and that war affected the entire continent, all psychologically and financially also. Why? Because that war fought between approximately how many years? 4 years. So psychologically means especially impact on the Germany. Why? Due to the Treaty of Versailles. So due to that, that treaty was very harsh and humiliating for the German people. And how can we say that that war was a financially? Because most of the countries, European countries, resources drained in that war, and most of the resources used in that wars. So that's why we can say that First World War affected the psychologically and financially. Now we will see from यूरोप कॉन्टिनेंट, क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू ए डेटर्स, यानी कि जो यूरोप पहले सबको उधार देता था, अब वो खुद क्या बन गया? एक दूसरे से उधार लेने वाला, कर्ज लेने वाला, क्योंकि अपनी कंपनसेशन को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. Weimar Republic was made to pay for the sins of old empire, because that time who was the emperor during the First World War in the Germany? Kaiser William II. And Weimar Republic when made after the abdications of the emperor. तो Weimar Republic was made to pay for the sins, यानी कि जो ओल्ड एम्पायर के जो कामों की सजा थी, जो उसने गलत काम किया था, उसका पे किसको करना पड़ा? वीमर रिपब्लिक को. सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स वर सपोर्टेड वीमर रिपब्लिक, यानी कि हु वर द सपोर्टर ऑफ द वीमर रिपब्लिक? Socialists, Catholics and Democrats, they were the supporter of the Weimar Republic. They were in the favor of the democratic form of government, republic form of government. So that's why they were called all the November criminals. Why they were called the November criminals? Because the Treaty of Versailles signed in which month? November month. So that's why they were called the November criminals. Weimar Republic was targeted by conservatives. It means that time Germany divided into mainly two groups. One were the supporter of the Weimar Republic, socialists, Catholics and Democrats, and second group conservatives. They were not supported Weimar Republic. So Weimar Republic were targeted by conservatives, which impacted political development. It means they were not favor in the democratic form of government. Changes in society, and how the European society changed after the war. In the Treaty of Versailles, we have seen the Allies power demilitarizing the which, यानी कि जर्मनी, यानी कि वो जर्मनी की जो आर्मी थी उसको क्या करना चाहती थी? वीकन. तो इसमें क्या है कि हाउ द चेंजेस इन द सोसाइटी, सोल्जर्स वर गेव मोर इम्पोर्टेंस. अब सोल्जर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, यानी कि मीडिया ने भी जो सोल्जर्स थे उनकी लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया. किस वे में? बट द ट्रूथ वॉज सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ. लेकिन अपोजिट जो सच्चाई है वो उसके बिल्कुल विपरीत थी, अपोजिट थी. दैट टाइम सोल्जर्स वर नॉट लिविंग इन ए गुड कंडीशन, दे वर लिविंग इन ए बैड कंडीशन. और व्हाई द मीडिया ग्लोरीफाइड? मीडिया ने क्यों सोल्जर्स लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर शो किया है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किस में आए? सोल्जर्स बने. सोल्जर्स ज्यादा आएंगे तो क्या होगा? उस कंट्री की या उस कॉन्टिनेंट का पूरा आर्मी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. तो दैट्स व्हाई मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, बट द ट्रूथ वाज सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स. डेमोक्रेसी वाज ए फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रेकन. दैट डेमोक्रेटिक with the help of Weimar Republic, they established the democratic form of government here, but some were not the supporters of the democracy idea. Their people lost confidence in government. यानी कि which type of government? Weimar Republic, यानी कि they lost their confidence. So now we will discuss the social, political and economic causes for this war. Now we will discuss the political radicalisms and economic crisis, यानी कि how the political crisis happened here and economic crisis happened after the Treaty of Versailles. Firstly, we will see political crisis. Weimar Republic and supporters. Supporters, who were the supporters? Catholics, Democrats, Socialists, they were the supporters of the Weimar Republic. They want to create here, which type of government they want to establish here? Democracy. So there was an uprising, but that time Germany was divided into mainly two groups. One in the favor of the Weimar Republic and the other were against the Weimar Republic.
there was an uprising. Then the second group, Spartacists. On the pattern of Bolshevik revolution in Russia, we have already studied about in second chapter. On the यानी कि that second group uprising on the pattern on Bolshevik revolution in Russia, who later founded Communist Party of Germany. So that is a short question. Who founded Communist Party of Germany in Russia? Sorry, in Germany. So what is the answer? Spartacists. And is what they have done here, they established Soviet of workers. Soviet matlab they have organization of workers and sailors in many cities, and that ideas were based on communisms. यानी कि they want to democracy form of government, यानी कि that king, yeah, we can say that the rulers will be chosen by the people on the universal adult franchise. But here second group wants to establish here communism, यानी कि who will rule here? Only workers, and all the money should be shared equally in all the people. In Berlin, what was the Berlin? Berlin was the capital of Germany. Demanded of Soviet style governance, and in Germany, in Berlin, which type of style of government they want to establish here? Soviet. They want to establish here workers government, which was suppressed by free corps. यानी कि जो तेजी से बढ़ रही थी सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, उसको किसके थ्रू उनको सप्रेस कर दिया गया? फ्री कोप्स. और फ्री कोप्स किसको सपोर्टर थे? वेमर रिपब्लिक एंड द सपोर्टर्स, यानी कि कैथोलिक, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स. नाउ दीज आर योर पॉलिटिकल क्राइसिस हैपेंड, और दैट टाइम जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. तो इट मींस दे कुडंट स्टॉप द हिटलर्स व्हेन हिटलर राइजेस, दे कुडंट अपोज दैट आइडिया. नाउ इकोनॉमिक क्राइसिस. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इम्पोज ऑन द जर्मनी. तो पेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि जर्मनी जो वॉर लड़ा वो किसके बेसिस पर लड़ा? लोन लेकर. एंड वॉर रिप्रेशंस बाय गोल्ड. रिप्रेशंस का मतलब होता है आर्ट सम्स ऑफ मनी दैट ए कंट्री पेड आफ्टर ए वॉर और बाय द डिफीटेड कंट्री. यानी कि कोई कंट्री हार जाती है किसी दूसरी का, मनी के रूप में कुछ उसको जो चुकाना पड़ता है. जर्मनी किसके रूप में क्षतिपूर्ति को चुका रहा था? कंपनसेशन को बाय गोल्ड. बट व्हाट हैपेंड व्हेन रिफ्यूज टू पे इन 1923, क्योंकि अपना जो भी कंपनसेशन है जर्मनी किसके थ्रू चुका रहा था? गोल्ड के थ्रू. अब धीरे धीरे जो गोल्ड के जो रिसोर्सेज थे उनमें भी क्या आने लगी? डिप्लीशंस, मतलब कमी तेजी से. तो व्हेन रिफ्यूज यानी कि नाउ जर्मनी डिनाइड टू पे इन 1923. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज, डिनाइड. फ्रांस, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर. तो या नाउ फ्रांस ने उसके जो इंडस्ट्रियल एरिया था जो फेमस था उस समय, रूर, उसके ऊपर क्या कर लिया? अपना कैप्चर कर लिया. क्यों? टू क्लेम इट्स कोल. कोल को प्राप्त करने के लिए वहां से. नाउ अब इस सिचुएशन से उभरने के लिए जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन बाय प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली. रेकलेसली मतलब अंधाधुंध तरीके से, गलत तरीके से, मतलब मार्केट में सर्कुलेट कर दिए खूब सारे रुपीज. विद टू मच ऑफ द प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन. तो इससे क्या हुआ? प्रिंटिंग क्या किया उन्होंने? करेंसी को रेकलेसली विद टू मच. तो इससे क्या होगा? जो प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन यानी कि मार्केट में ज्यादा स्तर पर आ गई, तो इससे जो वैल्यू है जो जर्मन का जो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगी? फॉल डाउन होने लगी. यानी कि जो यूएसए का 1 पाउंड था वो किसके इक्वल पहुंच गया? इनका मार्क्स का, यानी कि ट्रिलियन के इक्वल. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, यानी कि जो उनकी जर्मन वैल्यू का जो रुपीज की वैल्यू थी डाउन होती गई, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स सोर्ड का मतलब जो उनके प्राइसेस थे, जो चीजों के दाम क्या हो गए? ऊंचा, यानी कि 7वें आसमान को छू गए, यानी कि ज्यादा बढ़ गए. तो दैट सिचुएशन इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन में इट इज ए सिचुएशन व्हेन प्राइस राइजेस फिनोमिनली, यानी कि प्राइसेस का बढ़ जाना. तो फॉर दैट इन दैट सिचुएशन हु हेल्प? अमेरिका. अमेरिका ने सिचुएशन में हेल्प की जर्मनी की. इंटरवन टू कम इन बिटवीन एंड बेल्ड आउट, यानी कि सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जर्मनी विद ड्वेस प्लान. कौन सा प्लान बनाए? ड्वेस प्लान. इसके थ्रू क्या हुआ कि जर्मनी को एक हेल्प की जाए ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आए. जो उसको वॉर के लिए जो रिप्रेशंस के थ्रू जो उसको मनी चुकानी थी कंपनसेशन फॉर्म में, उसको मतलब पैसे कुछ दे. इसलिए अब पूरा जो जर्मन था वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया? इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हो गया, क्योंकि जर्मन की जो करेंसी की वैल्यू थी टोटली फेल डाउन होगी. अगर वहां पर अगर उनको कुछ खरीदने जाना है तो जर्मनी पेड कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय ए
loaf of bread. तो यानी कि अब these are the situation happened here, political crisis and economic crisis. But अमेरिका भी ज्यादा समय तक उसको हेल्प नहीं कर पाया इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्योंकि उसी समय क्या स्टार्ट होगा, द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशंस. नाउ वी विल डिस्कस द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशंस. स्टूडेंट्स, in that video we have discussed these important topics. First World War, यानी कि First World War fought between how many powers, allies and central powers, and how the origin of Weimar Republic, यानी कि Weimar Republic का बर्थ कैसे हुआ. Now the facts of the war, यानी कि First World War का जर्मनी और पूरे यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. And fourth, political radicalisms and economic crisis, कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस होने के बाद वहाँ की यानी कि जर्मनी के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ और कैसे ओरिजिन हुए, ये अमेरिका. फर्स्ट बेटा यू विल वॉच द वीडियो, दीज टॉपिक्स यू विल अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट दीज टॉपिक्स यू विल रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, टेक्स्ट बुक. एंड if you are having any problem after that you can ask to me. And after that what will you do, you will do learn and write question and answer. First question I have given, in which year America joined the First World War. In video I have explained. And who were called mockingly called November criminals. Third, what do you mean by hyperinflations. Fourth, what was the German parliament called. Fifth questions, the Treaty of Versailles was humiliating on the Germans. Give examples in support of your state. Beta up to 1 to 4 questions 1 mark, and 5 and 6 questions for 3 marks. According to 3 marks you will write down. The Treaty of Versailles was humiliating on the Germans. Give examples in support of your statement. Question number 6. What was the impact of the First World War on European and the German society? You will 5 and 6 questions you will explain according to 3 marks. And last 7. Who founded the Communist Party in Germany? That question is also for 1 marks. So you will learn and write these question and answer, but before writing these question and answer you should watch the video carefully. Thank you.